What's it like being Varun Dhawan? What's it like? मतलब इज द सेम. सबके ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस है, सबके अप्स एंड डाउन्स है. बट अगर मैं एक जेन्युइनली ऑनेस्ट आंसर दे सकता हूँ, आई थिंक मैं एक लाइफ एक बहुत ही लंबे समय के लिए एक बबल में जी रहा था. बचपन में जब स्कूल में था एंड देन वी रेड, हमें गौतम बुद्ध की बहुत कहानियाँ सुनाते थे एंड वी वुड रियलाइज कि वो एक किंग थे. देन ही लेफ्ट हिज किंगडम, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी एंड देन ही वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी. एंड उस टाइम पे आप कहानी की तरह सुनते हो, आप बोलते हैं अच्छा ये तो हम देखते हैं, हम गरीबी देखते हैं, हम जीवन और मौत देखते हैं, हम सारे ओकेजन्स देखते हैं, हमें पता है दुनिया कैसी है. तो मैं भी ऐसे जी रहा था. बट एक जब हादसा हुआ तो आई थिंक देर इज़ अ वरुण धवन बिफोर द एज ऑफ 35, बिफोर सम इवेंट, एंड देन देर इज़ अ वरुण धवन आफ्टर दैट. देर इज़ अ चेंज आफ्टर दैट. Okay. Will you ever talk about the incident in the future? मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है बात करने के लिए उसमें. बट genuinely for me, I think that it's like, you know, I would see myself in a very idealistic way कि I'm a hero and I can save the day, because I literally play a hero on screen, you know, and I save the day. It's just on that day I I kind of failed myself that day. Okay. Because so it took me some time to process that day. Because see, I think I've already spoken about it. People know that I was very close to Manoj, who was my driver for many years, and he passed away suddenly while we were working. And we did CPR. I did CPR. We took him to the hospital. My manager Ishita was there. I was there. I already know people are going to tell me, why did you say this? The close ones to me. Why are you talking about this? Why not? I don't know. So then we took him to the hospital. We took him to Leelavati. We got him there in time. So it was like very like you saved someone's life. And then literally like in my arms he passed away. You know, so that was very hard to see how casual it was, his passing. It just happened. It just happened like that. And my best friends, actually, two of my best friends, Aman, Ankit, they're my best friends. Where I am in life is also I'm very thankful to them. Within a second, they were there. They were with me the whole day. They were with me in the car when eventually we got the news, everything happened. And yeah, it took me some time to get off that. So if you see, my work also became very less. I'm having a release now. Baby John is releasing after 2 years in theaters. I'm having a release after 2 years almost. So it definitely hit me hard. Now I can't explain people what happened. Why does someone mean so much to me? Why does it matter to me? It matters. It does matter. Maybe क्योंकि वो आपको as a normal human being treat करते थे. Maybe. 100%. 100%. He was one of my angels, and one of my why I am where I am in life is also thanks to him. He was there with me from school to now, and this and I'm very. But one thing I also realized during that now, hence moving forward, I know that when any events happen like that, you have to move forward as a human being. Yeah. These things shake you, they break you, but you have to rebuild and move forward. Because this is life. But यही because after this happened, ये सब हुआ तो भगवद गीता पढ़ने लगा मैं, महाभारता पढ़ा, रामायणा पढ़ा, just randomly. I don't know why, but these urges came because I had a lot of questions. I had a lot of soul searching. जवाब मिला. हाँ, बहुत जवाब मिलते. You have to carry on. You have to carry on. This is ये एक चीज certain है. I think in the experience of being a man especially, but even for women. Yeah, for every. You know, the unbelievable part is that everyone goes through something like that. Yeah. It's not only me. So I don't want to come on to this podcast and by any ways tell viewers that feel bad for me. ये No, मेरे साथ हुआ. Not भाई. at all. ये सबके साथ होता है. I think the fact कि you're talking about it is
also healing a lot of people who've been through parallel situations of losing a family member, losing a friend. Yeah. But what I'm also trying to highlight here is friendship rather than just your incident. Yeah. As life moves forward, आपका जो inner circle रहता है वो छोटा होते जाता है according to me. 100%. और आप अपने बचपन के दोस्तों को, भाइयों को और भी ज़्यादा प्यार की नज़र से देखने लगते हो. 100%. मेरी तो ज़िंदगी में तो वैसे ही उतने ही दोस्त हैं जो मैं एक हाथ पे गिन सकता हूँ. जो मेरे रियल दोस्त है वो उतने ही है जो बैठ के बचपन में रॉयल रंबल देखते थे. हाँ बस वही है. रॉयल रंबल देखते थे. फिर एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है कविश, जिसके साथ मैं ऑस्कर्स देखता था जब भी होता था. तो जब भी ऑस्कर्स होते थे, कभी सुबह में होते थे ना, तो वो घर पे आता था, बाल वेट करता था, जैक निकलसन की तरह बाल पीछे करते थे, और वो वेफेयर चश्मे पहनता था और बैठ के देखता था. एंड नो अल्कोहल, इज हैड नथिंग, बट वो ऐसा होता था. ही इज लाइक दैट ओनली. ही इज ऑन अ शिप राइट नाउ, ही इज परफॉर्मिंग ओवर देयर. भाइयों के लिए प्यार बढ़ रहा है विद एज? नहीं, हमेशा से था. हमेशा से था. एज मेरा ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है उनके लिए. नहीं, मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ही था. आई एम फ्रॉम डे वन एक्सट्रीम ओनली. जो मेरा है, फिर आई एम विद दैट पर्सन टिल द एंड. फिर मैं वैसे हूँ, मैं एंड तक जाता हूँ. आई एम नॉट दैट मिडिल में छोड़ दिया कोई, ऐसा हो गया ये वो. आप भी मेरी तरह थोड़े से साइको हो ना? हाँ, थोड़े क्या, पूरे थोड़े एक्सेंट्रिक हो. पूरा ये आई फील कि आपके सिर्फ उन भाइयों को पता है. पूरा रैंडम. बट वो साइको नहीं है, वो आई थिंक वो वही नॉर्मल है. एक्सट्रीमिटी वही नॉर्मल है. देखिए सोसाइटी ने में व्हेन आई वाज स्टडिंग इन, ऐसे लगेगा लोगों ने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने की है थोड़ी बहुत. देयर वाज कितनी पढ़ाई की है? काफ़ी की है, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है टिल 21 12+3. Yeah. Okay. So there was a chapter, there was a book actually called The McDonaldization of Society. Okay. So McDonaldization of Society means McDonald's में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, खाना मंगाते हैं, फिर वो लोग हमें ही बुलाते हैं, हम लोग वो ट्रे लेते हैं, खाना खाते हैं, खाने के बाद हम लोग जाते हैं, खाने को वो जो खा लिया है वो डस्टबिन में डालते हैं, और जो ट्रे है एम्प्टी करते हैं, और जाके ट्रे वापस रखते हैं. दे आर टेलिंग यू व्हाट टू डू. दैट इज McDonaldization ऑफ सोसाइटी. वो लोग कंज्यूमर को बोल रहे कि आप ऐसा करो, और हम कर रहे हैं. दो वी आर इन अ रेस्टोरेंट, वी आर ओनली डूइंग एवरीथिंग. हम लोग सब काम कर रहे हैं. एंड यू विल बी लविंग इट. And you're loving it. And you'll be loving it. It's a great line. So that is what today's society is. Because there are so many corporations running the world that you are told what to do and you are told what to feel. So you can't even associate तो आपको कोई नेगेटिव फीलिंग होता है, नहीं भाई इन्होंने तो बोला कि अच्छा लगेगा तो अच्छा ही लगना है. जब मैं खुद कॉलेज में था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम करता था, फिटनेस यूट्यूब. और तब मेरे फेवरेट यूट्यूबर थे एलियट हल्स नाम के एक यूट्यूबर. ठीक है. और वो ऑन स्क्रीन जस्ट डायरेक्टली ऐसे सोलो पॉडकास्ट करते थे. एंड आई फील कि ऑन मेनी लेवल्स मेरी जितनी भी यूट्यूब की जर्नी रही है, इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एलियट हल्स. आई डोंट इवन थिंक ही इज एक्टिव एनीमोर. ठीक है. तो उन्होंने रैल्फ वॉल्डो एमर्सन नाम के एक फिलोसोफर के बारे में बात करी थी. और उन्होंने कहा था कि रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की बेस्ट कोट ये है कि थ्रू आउट योर लाइफ द वर्ल्ड विल कीप ट्राइंग टू चेंज यू एंड द विक्ट्री ऑफ अ मैन इज नॉट बीइंग चेंज्ड बाय द वर्ल्ड. और ये मैं बिल्कुल समझा नहीं कॉलेज में. एज 31 तक समझ गया हूँ यार. ये मैं पूरा समझ गया क्योंकि आई बिकेम एन एक्टर एट अ फेयरली यंग एज. एट 22.5 23 आई गॉट साइंड. 24 में मेरी डेब्यू हुई. पहले दिन से अभी तक लोग मुझे बस चेंज ही करने की कोशिश कर रहे हैं. अब भी? हाँ, अब भी, तब भी, जब भी सेम. ये आपका ये चलता है, आप जब ये करते हो वो अच्छा लगता है, आप ये, आप वो, आप. अरे मुझे खुद नहीं पता सुबह में मैं कौन हूँ भाई. मेरा मूड क्या है. मैं गुस्से के मूड में हूँ, मैं हैप्पी मूड में हूँ, मैं सैड मूड में, मैं जो मूड में हूँ मैं वैसे आऊँगा. Because I'm a human being, I'm allowed to feel whatever the hell I want to feel. केज्ड फील हुआ है कभी? बहुत. आजकल तो मतलब आई फील इट. जब मैं कुछ ऐसे चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं जाना है, आई कैन लिटरली हियर अ वॉइस विद इन मी स्क्रीमिंग. नहीं जाना मतलब मुझे ऐसे कुछ चीज़ें करनी है जो मुझे नहीं करनी है, जो नेगेटिव PR देगी. नहीं, कुछ इवेंट पे जाना है बट मुझे नहीं जाना है. मुझे नहीं जाना है. मुझे प्ले स्टेशन पे UFC खेलना है. मुझे मेरे डॉटर के साथ खेलना है. आई वांट टू लिटरली स्क्रैच माय डॉग. आई वांट टू स्क्रैच हिज स्टमक. बस मुझे वही करना, मुझे वो करना है. ये सेम बात ना कल आपके फ्रेंड के साथ हुई थी, कृति सानन के साथ. क्योंकि उनके साथ बहुत हुआ था और तो मैंने लाइव देखा था. Basically the consensus of that conversation was
आप लोगों की लाइफ में क्राफ्ट होता है या जो बहुत एंजॉयबल है, हाँ और फिर फ्रिल्स होते हैं, करेक्ट और फ्रिल्स की वजह से थकान फील होती है। 100%। क्राफ्ट की वजह से थकान कभी नहीं feel- कभी नहीं कभी नहीं, बट मुझे आप काम दे दो मैं कभी भी नहीं थकूंगा, मैं 24/7 काम कर सकता हूँ। हम्म, मुझे काम से कोई डर नहीं। आई लव माई वर्क, आई लव वर्किंग, आई फील वेरी ब्लेस्ड। आप मुझे काम करा दो, बट आजकल काम के साथ बहुत सारा, नाउ यू सेड दैट लॉट ऑफ द लिसनर्स आर यंगर पीपल, सो आई डोंट यूज एनी बैड वर्ड्स। नहीं वो लोग भी Profanity. यूज करते हैं। हाँ करते होगे, बट फिर भी